Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class first year. Here is your subject teacher Salma Boyo, and today we are going to start our second lecture of zoology. Students, in our first lecture we have learned about the biology and the historical background of the biology. Also we have studied the five kingdoms of the biology. Students, now we are going to study the branches of the biology, and the first branch of the biology is the molecular biology. So what is molecular biology? Molecular biology is the recent branch of the biological science. What is molecular biology? This is the branch of biology. It deals with the structure and function of the molecules which form the structure of cell and its organelles. Okay, so simply you know that the smallest particle on the earth is atom, and atoms combine to form molecules, and the study of these molecules is called molecular biology. Those molecules which are synthesized in our body. So students, molecular biology is the branch of biology in which we study in this branch is deals with the structure. It deals with the structure and function of the molecules and functions of the molecules. Okay, molecules which form the structure of the cell. डियर स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी, या फिर वो मॉलिक्यूल्स जो कि क्या करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेल के ऑर्गेनेल्स। जैसे कि आपको पता है कि स्मॉलेस्ट और जो एलिमेंट होता है हमारे अर्थ पे, जो स्मॉलेस्ट होता है वो पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं एटम, जो कि पार्टिकल्स से बना हुआ होते हैं। अब ये एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर फिर बनाते हैं ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स कंबाइन होकर बनाते हैं सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जो है वो फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर कौन से होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो कि कंबाइन होकर फिर हमारा बनाते हैं डीएनए। सो सिंपली स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नंबर सेकंड ब्रांच इज द माइक्रोबायोलॉजी. Micro means small. So the microbiology is deals with the study of microorganisms. Simply, this is also the branch of biology in which we study about microorganisms. Okay, in this branch we study about the microorganisms, are simply those organisms which we cannot see with our naked eye. These organisms can only be seen with the help of माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जिनको हम अपनी आँख से, अपनी मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो सिंपली स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरस, bacteria, protozoans such as amoeba, euglena, etc. These are also small organisms and they can only be seen under microscope. इनको हम किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रो
स्कोप की मदद से देखते हैं, और माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट seen with our naked eye or is called microbiology. And the third branch of biology is called environmental biology. It deals with the study of environment and effects on the organisms. Simply, environment biology is also called ecology. इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं? Ecology. एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी इज द सेम थिंग। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक ही बात है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं एनवायरमेंट की और इसका इफेक्ट किस पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। यानी हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ environment. What is environment? It is non-living. So study of non-living environment. Okay, study of non-living environment and its effect on organism and its effects on organisms. ठीक है, simply called study of the non-living things environment with our living things is called ecology. ठीक है, इसको हम environmental biology या फिर ecology भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम थिंग है। अगर आपको कोई कहे कि इकोलॉजी डिफाइन करे या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डिफाइन करे, ये तो ये दोनों क्या है? सेम थिंग है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 ब्रांच है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी। So in marine biology, we study of those living organisms which are inhabiting in the sea or ocean. So it deals with the study of organisms which are living in sea or oceans. ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ पे रहते हो? सी में रहते हो या फिर ओशन में रहते हो। ठीक है, द वाटर ऑफ सी इज कॉल्ड मैरिन वाटर बिकॉज इन मैरिन वाटर there is a greater concentration of salt, so that's why this water is called marine water, and sea and ocean water is called marine water. So study of those living organisms which live in sea or ocean is called marine बायोलॉजी। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि इसमें रहते हो मैरिन वाटर में, उनकी फिजिकल केमिकल जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं मैरिन बायोलॉजी। ठीक है, मैरिन बायोलॉजी के बाद है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। सो व्हाट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी? सिंपली दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन फ्रेश वाटर and their study is called freshwater biology. Simply, it deals with the life of those living organisms which dwell in the fresh water. ठीक है, it deals with the life of dwelling in the fresh water. इसको कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी को? It deals with the life dwelling in the fresh water. It deals with the life dwelling in the fresh water. सिंपली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं। कुछ हमारे पोंड में रहते हैं और कुछ हमारे फ्रेश वाटर। बहुत सारी फिशेस जो है वो क्या कहाँ पे रहती हैं? इस फ्रेश वाटर में रहती हैं।
ठीक है। नंबर 6 इज पैरासाइटोलॉजी, एंड इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द पैरासाइट्स, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, इट डील्स with the study of parasitic organisms. Parasite organisms always harm to their host and get their benefit. पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं, ये जो है वो डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे, यानी कि इनका इंटरेक्शन होता है किसके साथ? अपने होस्ट के साथ, ठीक है। होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और उससे अपना क्या करते हैं? फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमें नुकसान देकर अपना फूड वगैरह हमें से जो है वो ले लेते हैं। लाइस का एग्जाम्पल लेते हैं, हम जो है लाइस भी क्या करती है? हमारे बालों में जो है वो हमारा खून चूस देती हैं और हमें जो है वो हमें क्या, यानी कि अपना फ़ायदा ले लेती है, ठीक है। वो एक्टो पैरासाइट है। कुछ एंडोपैरासाइट भी होते हैं। एंडोपैरासाइट जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ कीड़े वगैरह मिलते हैं, तो वो कौन से होते हैं? पैरासाइट, एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। अब ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती हैं किसके साथ? ह्यूमंस के साथ, ठीक है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं मेन की, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी है, इसमें हम क्या करते हैं? ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि ताल्लुक़ रखती है किसके साथ? स्टडी ऑफ मैन के साथ, ठीक है। ये क्या है? बायोलॉजी की ब्रांच है और इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें? स्टडी ऑल द बायोलॉजिकल, स्टडी ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, स्टडी ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन, ठीक है। इंसान के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन हो गई इंसान की, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ, ठीक है। सब कुछ इसमें हम क्या करते हैं? ह्यूमंस का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? मैन की स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी is the recent branch introduced in biological science. It is a modern branch. You can say that this branch is modern branch. This is a modern branch of biology. It deals with the use of data, techniques of engineering, and also the study of solution of problems concerning with the living organisms. Simply, technology is the modern branch of biology. It is the modern branch of biology in which we study, what we study, the genetic engineering, study of solution of problems, and so many other techniques. Solution of problems. Simply, modern technologies are used to solve the problems of our life. बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जो कि रिलेटेड होती हैं किसके साथ? हमारी लाइफ के साथ, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी क्या करती है? कभी कभी इंसुलिन प्रिपेयर नहीं करते, तो इसके ज़रिए क्या किया जाता है? इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। या फिर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए न्यू मेडिसिन डिस्कवर हो रही हैं, ठीक है। इसके ज़रिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या की गई है? इवॉल्व की गई है, ठीक है। यानी कि इसका बायोसोशियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के साथ। ऐसे स्टूडेंट्स, एक और ब्रांच भी है बायोलॉजी की जिसका नाम है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, and this branch is also related with our life. Social biology, we study about our behavior, especially social behavior. Okay students, thank you, and your homework is memo all the branches of biology. Have a good day.